آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے تجوید کا ایک بہت اہم قاعدہ جس کا نام ہے ادغام شمسی۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ہمیں الف لام دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ اس طرح کے اگر آپ دیکھیں گے نا قرآن میں جگہ جگہ تو یہ الف لام بہت ملیں گے، آپ کو ہر صفحے پر بہت سارے مل جائیں گے۔ تو یہ والا جو قاعدہ ہے ادغام شمسی کا، یہ الف لام ہی کا قاعدہ ہے۔ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 15۔ اس 15 تختی کے اندر یہ اظہار قمری کا قاعدہ آپ کو مل جائے گا۔ چلیے اس قاعدے کو سیکھنا ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تجوید کا کوئی بھی قاعدہ سیکھنا ہو تو سب پر فوکس مت کرو، آپ صرف ان تین چیزوں پر فوکس کرو۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے نام، دوسری ہے وجہ، تیسرا ہے حکم۔ کتنی چیزیں سیکھنی ہے؟ ہر ایک قاعدے کے اندر ہمیں صرف تین چیزیں سیکھنی ہیں، اور یہ تین چیزیں اگر آپ نے سیکھ لی، اچھے سے سمجھ لیا، ذہن میں بٹھا لیا ان کو، تو پھر آپ اس قاعدے کو کبھی بھی نہیں بھولو گے، یا کسی بھی قاعدے کو تجوید کے پھر کبھی نہیں بھولو گے۔ تو سب سے پہلے ہم نام پر فوکس کریں گے۔ نام کیا ہے؟ ادغام شمسی۔ اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ ادغام شمسی۔ قاعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رول، یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کے بھی کچھ رولز ہیں، وہ قاعدے قانون ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ یہ نورانی قاعدے کے اندر یہ اور بہت سارے قاعدوں کے اندر سکھائے گئے ہیں۔ تو پہلی چیز ہم نے سمجھ لی، نام ہے ادغام۔ ہر ایک قاعدے کے بننے کی وجہ بھی ہوتی ہے، ریزن بھی ہوتا ہے۔ بغیر ریزن، بغیر وجہ کے کوئی بھی قاعدہ بن نہیں سکتا۔ تو اس قاعدے کے بننے کی وجہ کیا ہے؟ دو وجہ ہیں، یہاں پر دیکھ لیجئے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ الف لام ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ حروف شمسی کے یہ 14 حروف ہیں۔ یہ جو حروف یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شمسی، اور یہ 14 ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ مطلب کیا ہے؟ کہیں بھی قرآن کریم کے اندر الف لام نظر آ جائیں اور الف لام کے بعد میں حروف شمسی کے ان 14 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف نظر آ جائے تو وہاں پر ادغام شمسی کا قاعدہ بن جاتا ہے۔ دو چیزیں ہم نے اچھے سے سمجھ لی ہیں۔ پہلی چیز ہم نے سمجھ لی ہے نام، اور نام کیا ہے؟ ادغام شمسی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وجہ، اور وجہ کو بھی ہم نے اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے۔ وجہ اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہاں پر اور کلیئر ہو جائے گی۔ ابھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو میں، دھیان دیجیے گا۔ یہاں پر آپ کو الف لام نظر آ رہے ہیں، فوکس لے کر کے جائیے گا۔ الف لام ہے یہاں پر موجود ہیں۔ دوسری چیز دیکھیے گا، الف لام کے بعد میں کیا حرف ہے یہاں پر؟ نون تو نہیں ہے؟ نون ہی تو ہے، یہ نون ہے۔ نون دیکھو حروف شمسی کے ان 14 حرفوں میں سے تو نہیں ہے، تو یہ جو نون ہے نا حروف شمسی میں ہی آتا ہے۔ تو بس یہاں پر ادغام شمسی کی یہ دونوں وجہ موجود ہونے کی وجہ سے، دونوں وجہ کیا ہے؟ الف لام آ گئے، نون آ گیا، اس کے بعد میں دوسری شرط میں سے، دوسری وجہ میں سے، حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے، تو الف لام کے بعد میں نون آ جانے کی وجہ سے یہاں پر ادغام شمسی کا قاعدہ بن گیا ہے۔ یہاں پر فوکس لے کر کے آئیے گا۔ کیا آپ کو یہاں بھی الف لام نظر آ رہے ہیں؟ جی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا نظر آیا؟ دھیان دو، سین ہے، تو دھیان دو سین حروف شمسی کے ان 14 حرفوں میں سے تو نہیں ہے کہ جی ہے، تو بس یہاں پر ادغام شمسی کا قاعدہ بن گیا ہے، اس لیے کہ الف لام آ گئے ہیں پہلی شرط میں سے، الف لام کے بعد میں سین آ گیا ہے دوسری شرط میں سے۔ تو وجہ بھی ہم نے اچھے سے سمجھ لی ہے، وجہ بالکل کلیئر ہو گئی۔ الف لام کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ حروف شمسی آتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ اب چیز رہ گئی ہے تیسری چیز کیا ہے؟ حکم ہے۔ حکم سیکھنا رہ گیا ہے۔ تو حکم کیا ہے اس کا؟ ادغام شمسی کا سمجھیے گا، الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ اس کے بعد والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی آپ کو ادغام شمسی کا قاعدہ مل جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہمیں مل رہا ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ الف لام کو نہ پڑھیں گے، الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ اس کے بعد والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ہو گیا الف، اس کو پڑھنا نہیں ہے، یہ ہو گیا لام، اس کو بھی نہیں پڑھنا۔ ان دونوں کو ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کے بعد میں جو حرف ہے اس کے ساتھ میں ملا کر کے پڑھیں گے۔ واو کو کہاں ملائیں گے؟ نون سے ملائیں گے۔ والنہاری، سمجھ گئے آپ؟ میں نے الف کو بھی نہیں پڑھا ہے، لام کو بھی نہیں پڑھا ہے، نون کو پڑھا ہے۔ بس یہی حکم ہے ادغام شمسی کا۔ یہاں پر بھی ادغام شمسی کا قاعدہ ہے نا، تو یہاں بھی الف لام کو نہیں
नहीं पढ़ेंगे, अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से यानी सीन के साथ में वाव को मिलाएंगे। जैसे वस्समाई वमा। तो हुक्म भी हम अच्छे से सीख और समझ गए हैं। तीनों चीज़ें हमने समझ ली हैं। नाम समझ लिया है, इदगाम शमसी है, वजह समझ ली है, दो वजह है, अलिफ लाम के बाद में हुरूफ शमसी में से कोई भी एक हर्फ आ जाएगा तब ये कायदा बनेगा। तीसरी चीज़ हुक्म भी समझ लिया हमने कि अलिफ और लाम दोनों ही नहीं पढ़े जाते हैं, बल्कि उसके बाद में जो हर्फ आता है ना हुरूफ शमसी में का, उसी के साथ में मिला करके पढ़ते हैं। इस कायदे को हम अच्छे से समझ गए हैं। सिर्फ एक चीज़ और सिखानी है मुझे आपको इसी वीडियो के अंदर। वो चीज़ क्या है? इजरा है। तजवीद के अंदर इजरा की बहुत अहमियत है। इजरा किसे कहते हैं? अगर हम नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं तो भी, और अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं तो भी, हमें हर एक हर्फ का मखरज आना चाहिए। जैसे आपका नूरानी कायदे में इस जगह पर सबक है तो आपको जितने भी ये हुरूफ है ना, इसका मखरज पता होना चाहिए। वाव का मखरज क्या है? दोनों होठों के किनारे मिलने और बीच खुला रहने से अदा होता है। अलिफ लाम नहीं पढ़े जा रहे हैं, चलो छोड़ दो इसको। नून का क्या मखरज है? जबान की नोक ऊपर के मसूड़ों से टच होकर के नून अदा होता है। हा का क्या मखरज है? शुरू हलक सीने की तरफ से अदा होता है हा। अलिफ का क्या मखरज है? मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है अलिफ। रा का क्या मखरज है? जबान की नोक कमर की तरफ ऊपर के तालू से मिलकर रा अदा होता है। हमजा का मखरज क्या है? शुरू हलक सीने की तरफ से अदा होता है। जाल का मखरज है? जबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे से मिलकर के जाल अदा होता है। अलिफ का मखरज मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। इस तरह से एक एक हर्फ का मखरज आप इसी तरह से बता पाएँ। सबसे पहला गोल ये होना चाहिए हमारा, अगर हम तजवीद के साथ में कुरान सीख रहे हैं या नूरानी कायदा सीख रहे हैं। इसी को इजरा कहते हैं। इजरा की पहली चीज़ क्या है? हर एक हर्फ का मखरज हमें अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या आती है इजरा के अंदर? हर एक हर्फ के अंदर सिफत होती हैं, यानी हो सकता है वो हर्फ मोटा पढ़ा जाए, हो सकता है बारीक पढ़ा जाए। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। वाव के अंदर इस्तिफाल की सिफत है, यानी हुरूफ मुस्तफीला में से है वाव, वाव को बारीक पढ़ेंगे। नून हुरूफ मुस्तफीला में से है, बारीक पढ़ेंगे। हा हुरूफ मुस्तफीला में से है, बारीक पढ़ेंगे। अलिफ कभी मोटा कभी बारीक पढ़ा जाता है, यहाँ पर बारीक पढ़ा जाएगा। रा यहाँ पर बारीक पढ़ा जाएगा इसलिए कि रा पर जेर है। हमजा हुरूफ मुस्तफीला में से है, बारीक पढ़ा जाएगा। जाल हुरूफ मुस्तफीला में से है, बारीक पढ़ा जाएगा। अलिफ कभी मोटा कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो मैंने जल्दी जल्दी सिफात बता दी हैं कि ये बारीक पढ़ा जाएगा, ये मोटा पढ़ा जाएगा। अगर आपको डिटेल में सीखनी है सिफात, तो सिफात पर एक मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई है, बहुत आसान अंदाज में सिखाई हैं सिफात, उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मखरज नहीं सीखे हैं, सिफात नहीं सीखी हैं, तो ये मान लो आपके हर्फों की अदायगी सही और दुरुस्त नहीं है। तो इजरा किसे कहते हैं? तीन चीज़ होनी चाहिए। मखरज मैंने आपको बता दिए, सिफात आपको आनी चाहिए हर एक हर्फ की, वो आपको मैंने अभी जल्दी जल्दी बताई हैं। तीसरी चीज़ रह जाती है कायदा, यानी कुरान के किसी भी हर्फ पर आप उंगली रखो, वहाँ पर तजवीद का कोई ना कोई कायदा होगा। यहाँ पर इसे भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। वाव पर क्या कायदा है? हरकत का कायदा है। क्यों है? इसलिए कि वाव पर ज़बर है। कैसे पढ़ा जाएगा? हरकत को जल्दी पढ़ना चाहिए। जैसे वन्नहारी। हो सकता है ये चीज़ें भी आपको समझ में ना आ रही हों। ये चीज़ें अगर आपको समझनी है ना, मेरी पूरी वीडियोस को देखना पड़ेगा एक एक को अच्छे से, और नेक्स्ट भी जो वीडियो हैं वो भी देखते चले जाइए। आपको तजवीद का तो माहिर बना दूंगा मैं, किसी और चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता, तजवीद की लेकिन फुल गारंटी है, इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा। अलिफ और लाम पर क्या कायदा है? यही कायदा है जो आपने सीखा है। इदगाम शमसी का कायदा है अलिफ लाम पर। क्यों है? इसलिए कि अलिफ लाम के बाद में नून आ गया है हुरूफ शमसी में से। हुक्म क्या है इसका? कैसे पढ़ेंगे? अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे, बल्कि नून के साथ में मिला करके पढ़ेंगे। जैसे नहारी। नून पर कहीं भी तशदीद आ जाती है तो वहाँ हर्फ गुन्ना का कायदा ही बनता है। तो नून पर एक कायदा और है, क्या है उसका नाम? हर्फ गुन्ना का कायदा है, इसलिए कि नून पर तशदीद आ गई है। हर्फ गुन्ना में एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ना चाहिए। नून पर एक और कायदा है तजवीद का, क्या है? हरकत का कायदा है, क्योंकि हरकत है उसके ऊपर ज़बर है, इसलिए कि ज़बर है नून पर, वजह इसकी ये हो गई। हुक्म ये है कि हरकत वाले हर्फों को जल्दी पढ़ना चाहिए। जैसे वन्नहारी। हा पर क्या कायदा है? हा पर
हरफ मद का कायदा है, इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है हा पर। हरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना चाहिए। रा पर क्या कायदा है? हरकत का कायदा है, इसकी डिटेल में पहले बता चुका हूँ। हमजा पर हरकत का कायदा है। जाल पर हरूफ मद्दा का कायदा है, इसलिए कि अलिफ से पहले जाल पर ज़बर है। हरूफ मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना चाहिए। तो इजरा क्या है बताइएगा, आप कमेंट में भी बताना, मैं भी बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, हर एक हर्फ का मखरज आना चाहिए आपको, तभी आप इजरा कर सकते हैं। फिर हर एक हर्फ की सिफत आनी चाहिए, तभी तो आप हर एक हर्फ की सिफत बता सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, हर एक हर्फ पर क्या कायदा है ये आप फटाफट बता पाएं। तो तीसरी चीज भी इजरा के अंदर आती है, जिसको कायदा या रूल कहते हैं। अगर ये तीनों चीजें आपने सीख ली हैं, समझ ली हैं, मेरी वीडियो से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, लेकिन आपको डेली देखनी होंगी, बार बार देखनी होंगी, एक बार से समझ में ना आए तो। क्योंकि बार बार कौन देखेगा? जिसको सीखना होगा। जिसको सीखना नहीं है या जिसका शौक थोड़ा सा है, जिसकी चाहत थोड़ी सी है सीखने की, और हो सकता है ना देखे। तो अगर आपको पूरी चाहत है, वाकई में आप तालिब इल्म हैं, तालिब इल्म का मतलब होता है इल्म की तलब रखने वाला, इल्म की चाहत रखने वाला। उर्दू के अंदर स्टूडेंट को तालिब इल्म कहते हैं, यानी इल्म की चाहत रखने वाला। अगर आप तालिब इल्म हैं, इल्म की चाहत रखने वाले हैं, तो वीडियो मेरी भी देखेंगे, दूसरे लोगों को भी देखेंगे, क्योंकि आपको सीखना है तजवीद को। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब आपका काम शुरू होगा। कमेंट के अंदर बताइएगा जो कायदा आज मैंने सिखाया है आपको, उसका नाम क्या है, उसकी वजह क्या क्या है, उसका हुक्म क्या है। इजरा के अंदर तीन क्या क्या चीजें आती हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि कुछ होमवर्क भी तो मिलना चाहिए ना आपको। क्लास में हो ये समझो भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो कमेंट कर दीजिएगा इंशाल्लाह। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, लाइक कर दीजिए, सेव कर लीजिए, दूसरों को वीडियो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए।